Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is Forests of the World. Today I'm going to deliver its lecture number 6. So my dear students, quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the book. So now let's just quickly move forward. So my dear students, let's quickly look at the SLO. Previous lecture में हमने मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में types of forest हैं हमने उनको identify किया था. आज हम मुख्तलिफ तरह के जो trees particularly which are found in Pakistan आज हम उनको देखेंगे and we will also explore why the forests of the various regions across Pakistan differ. क्यों पाकिस्तान के जो various forests है वो differ करते हैं मुख्तलिफ areas में और इसके अलावा कौन सी तरह के important trees यहाँ पाए जाते हैं. We will have a look at that. So quickly open page number 77 in your books. I hope everybody has opened the book. So my dear student, trees in the northern areas of Pakistan, mostly जो trees हैं वो northern areas में पाए जाते हैं जो कि किस तरह के होते हैं, which are conifers which do not shed their leaves. लेकिन उनके भी मुख्तलिफ names हैं. कौन कौन से हैं? Let's quickly have a look. So the northern areas of Pakistan are known for their stunning natural beauty and diverse ecosystem, including a wide variety of trees. Here are some of the different types of trees you can find in the northern areas of Pakistan. So ये पाकिस्तान का मैप है. नॉर्दर्न एरियाज में मैक्सिमम तरह की जो आपको या नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में आपको मुख्तलिफ तरह के जो ट्रीज हैं या फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं. सो हम देखते हैं किस तरह के हैं. देवदार एंड सिडार ट्री. So iconic coniferous evergreen trees of the northern region, shape and size. अब हम देवदार की बात करें which is a coniferous और ये किस तरह का होता है, ये pyramid like होता है, shape इसकी होती है और height जो होती है इसकी from 50 it reaches up to 50 to 60 meters high. करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके ऊपर ब्लूइश ग्रीन नीडल जो है उस तरह के लीव्स लगते हैं और इसके ऊपर लार्ज सिलेंड्रिकल कोन्स जो है वो भी लगती हैं और इसको हम देवदार या सिडार जो है वो कहते हैं. नेक्स्ट इज द ब्लू पाइन. ये भी एवरग्रीन कॉनिफेरस है. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं. These are the majestic coniferous trees in the northern areas और इनका alternate name जो है वो कश्मीर पाइन भी है. They can grow up to the size of 30 to 45 meters. Characteristic क्या है, इनके long bluish green needles होती हैं जिनको आप leaves कहते हैं और इनके large ovate जो है वो cones इनके ऊपर लगती हैं. Next is the Himalayan poplar. So it is not a coniferous tree. ये एक deciduous tree है. That means it will shed its leaves. So deciduous tree found in northern regions of Pakistan. लेकिन इसकी location क्या है कि ये भी north में पाया जाता है. Tall होता है, cylinder होता है and reaches up to the height of 30 to 40 meters. Leaves इसके triangular होते हैं with separated edges. और characteristic leaves की क्या है कि leaves flutter in the wind and creating a beautiful sight. So this is one of the trees जो कि apart from कॉनिफेरस ये यहाँ पाए जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं वॉलनट. वॉलनट जो है दिस इज ऑल्सो अ डेसिडुअस ट्री और दीज आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, नोटेबली इन कागान वैली एंड सवात वैली और इनके ऊपर अखरोट लगते हैं. ये डेसिडुअस ट्री है. इट रीचेज अप टू द हाइट ऑफ 20 to 30 मीटर्स और इसकी क्या खास बात है, हाईली वैल्यूड फॉर बोथ टिम्बर एंड न्यूट्रिशियस नट्स. अब इसके लिए इससे फर्नीचर बहुत खूबसूरत बनाया जाता है इसकी लकड़ी से और इसके अलावा अखरोट तो इसके ऊपर लगते ही हैं जो कि बहुत शौक से सब लोग खाते हैं. नेक्स्ट इज द हिमालयन स्पर्स. ये क्या है? दिस इज अ कॉनिफेरस ट्री. दैट मींस इट इज एन एवरग्रीन ट्री. सो नेटिव टू द हिमालयाज कॉनिफेरस ट्री कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 40 to 60 मीटर्स और शेप इसकी कैसी होती है? कॉनिकल शेप होती है ट्री की, आप देख सकते हैं, विद सिलेंड्रिकल कोन्स और इसकी नीडल्स कैसी होती है? ब्लूइश ग्रीन होती हैं. उसके बाद आ जाते हैं चिनार ट्री. सो चिनार ट्री की टाइप क्या है? इट इज नॉट अ कॉनिफेरस ट्री, इट इज अ डेसिडुअस ट्री. दैट मींस इट इज गोइंग टू शेड इट लीव्स इन द फॉल. और लोकेशन क्या है? प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न एरियाज लाइक आजाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान और अटेन्स द हाइट ऑफ 25 to 30 मीटर्स. और किस तरह का होता है? क्राउन इसका कैसा होता है? फीचर्स अ ब्रॉड स्प्रेडिंग क्राउन. आप देख सकते हैं कि ऊपर से काफी जो है वो चौड़ा हो जाता है ये जाके. एंड लार्ज एंड पैल्मेट इन शेप और इसके लीव्स कैसे होते हैं? चौड़े चौड़े होते हैं और पाम शेप्ड होते हैं इसके लीव्स. ओके,
सो ये हमने पढ़ ली मुख्तलिफ तरह के ट्रीज, लेकिन अब हमने क्या करना है, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान वेरिड वुडलैंड्स, यानी कि अक्रॉस द पाकिस्तान मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ तरह के ट्रीज क्यों पाए जाते हैं, या वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द पाकिस्तान, क्यों है ये डाइवर्सिटी. सो दिस डाइवर्सिटी इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्स जियोग्राफी, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रीज जो हैं वो पर्टिकुलरली हमें ठंडे इलाकों में मिल रहे हैं. जैसे जैसे हम प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं तो फॉरेस्टेड एरिया जो है वो कम हो जाता है, और वहाँ आपको यूजुअली ड्राई जगह पे जो पौधे उगते हैं वो वेजिटेशन नजर आती है. फॉरेस्ट एरिया बहुत कम हो जाता है. एज वी मूव टूवर्ड्स द कोस्टल एरिया तो वहाँ आपको मैनग्रोव्स मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो सेलाइन है, तो मैनग्रोव्स कैन ग्रो इन सेलाइन वाटर. वहाँ कोई डेसिडुअस ट्रीज या कॉनिफर ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. सो इस वजह से दिस डिफरेंशिएशन इज फाउंड. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक. So geography different है. Pakistan has mountains, alpine deserts, coast. Different regions have different altitudes with effect types of which affects the types of trees that can grow. For example, coniferous forest. फिर उसके बाद आ जाती है precipitation. अब जहाँ जितनी ज़्यादा बारिश होगी वहाँ जो है वो dense forest होंगे, और जहाँ बारिश कम होगी वहाँ आपको density जो है forest की या plantation की, vegetation की, वो कम होती हुई नजर आएगी. So monsoon winds in Pakistan bring heavy rains to various regions at different times. Areas with more monsoon rain tend to have denser forest with a ग्रेटर प्लांट वेराइटी. तो वही बात मैं जो आपको कह रही हूँ कि जितनी ज़्यादा जो है वो बारिश जहाँ रिसीव होगी उतना डेंस थिक फॉरेस्ट वहाँ होगा, और प्लांट वेराइटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी. सॉइल एंड क्लाइमेट. अब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह की सॉइल होती है, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल पे बहुत इफेक्ट होता है. जैसे कि मैंने आपको कोस्टल रीजन्स की जो है वो एग्जाम्पल दी कि जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ सेलाइन वाटर में मैनग्रोव्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है विद द क्लाइमेट. सो पाकिस्तान डाइवर्स सॉइल composition and climate conditions shapes its forests with different trees types adapted to the specific soil and climates, creating a range of forest ecosystem. So human impact bhi hai. So human activities like deforestation, agriculture and urbanization also play a role in shaping the forest. So कहीं ज़्यादा forest है, कहीं कम है. ये किस वजह से होता है? क्योंकि अक्सर जगहों पे जहाँ पे इंसान आके बस जाते हैं, so they clear the forest for agriculture purpose and residential purpose. So इस वजह से फिर forest में आपको वेरिएशन नजर आ सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सपोर्ट करते हैं वाई पाकिस्तान हैज अ वियर्ड वुडलैंड और वेरीड वुडलैंड. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For homework, you will complete skill 4.3. You will scan the QR code and you will have access to the skill sheet. And further, you will complete MCQ number 4 in your books. So this will be your homework. And my dear students, आज हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की जो types of trees हैं, important या famous जो ट्रीज हैं टाइप्स की, हमने उन टाइप्स को देखा, और उसके अलावा क्यों मुख्तलिफ तरह के फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, हमने उनको भी एक नज़र देखा. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.